કોરોના વેક્સિનને લઈને સૌથી મોટા અને મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે, કારણ કે કોવિશિલ્ડને લીલી ઝંડી મળવાના સંકેત. કોરોના વેક્સિનને લઈને આ મહત્વના સમાચાર. કોવિશિલ્ડ વેક્સિનને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવાની ભલામણ થઈ ચૂકી છે. ડીસીજીઆઈની એક્સપર્ટ કમિટીએ મંજૂરી આપવાની કરી છે ભલામણ. ત્યારે આવતીકાલ સુધીમાં કોવિશિલ્ડ વેક્સિનને મળી શકે છે મંજૂરી. સૂત્રો દ્વારા માહિતી મળી છે. ભારતમાં કોરોના વેક્સિનને લઈને આવ્યા છે આ સૌથી મોટા સમાચાર. ઓક્સફર્ડ એસ્ટ્રાઝેનેકાની કોરોના વેક્સિનને ટૂંક સમયમાં જ ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી મળી શકે છે. સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ કમિટીએ ઓક્સફર્ડ અને એસ્ટ્રાઝેનેકાની વેક્સિનને ભારતમાં ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવા માટે ભલામણ કરી છે. વિશ્વની સૌથી મોટી વેક્સિન ઉત્પાદક કંપની સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાએ ઓક્સફર્ડ અને એસ્ટ્રાઝેનેકાની વેક્સિન કોવિશિલ્ડ બનાવવા માટે કરાર કરેલા છે. સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કોવિશિલ્ડનું ભારતમાં ટ્રાયલ કરી રહી છે, જેના તરફથી ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ કમિટીની ભલામણના આધારે હવે ડ્રગ્સ કંટ્રોલ જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા અંતિમ મંજૂરી માટે નિર્ણય કરશે. મહત્વનું છે કે ભારતમાં સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઉપરાંત ભારત બાયોટેક અને ફાઇઝર તરફથી પણ પોતાની વેક્સિનના ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી માંગવામાં આવી છે. તો સમગ્ર મુદ્દે ચર્ચા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે ડોક્ટર ધીરજ કૌલ, અમેરિકાથી, ન્યુયોર્કથી જોડાયા છે. તો સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે નિશ્ચલ ભટ્ટ, જે સભ્ય છે राज्य टास्क फोर्स ना. धीरज जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से जो ग्रीन सिग्नल मिल गया है कोविशील्ड को, कितनी बड़ी बात है भारत के लिए? देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. मैं जैसे कि पहले भी बताता रहा हूँ, CDSCO जो भारत की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक ग्रीन सिग्नल दिया है. इसके अंदर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं. DCGI के पास अब बॉल इज इन देयर कोर्ट. जैसे कि आप जानते हैं, एस्ट्राजेनेका मैं कई महीनों से आपके शो में बता आया हूँ, काफी इफेक्टिव वैक्सीन है. यूके में अप्रूवल आ चुका है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज. इस मंडे से वो रोल आउट शुरू कर देंगे. 4 करोड़ डोजेज उनके पास, 4 मिलियन डोजेज, 40 लाख रेडी हैं, और तकरीबन 4 करोड़ बॉटलिंग के लिए पेंडिंग है, मतलब 1-2 हफ्ते में अवेलेबल हो जाएंगी. इंडिया के अंदर सेम वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की कंबाइंड वैक्सीनेशन है, वो उसके तर्ज पे जो काम सीरम ने किया है वो भी बहुत अच्छा काम है. और मुझे लगता है, क्योंकि डाटा मैंने बहुत क्लोजली देखा है, 99.99% चांस है कि DCGI से अप्रूव कर देगा. और ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि रोज कई 100 मौतें भारत में भी हो रही हैं. अभी रिसेंटली जर्मनी में, यूरोप में आपने देखा 1000 लोग एक दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी. तो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर था गवर्नमेंट्स के ऊपर. उस डाटा को प्रोसेस करना लाइटनिंग स्पीड के साथ, जिसमें महीने लगते थे, हफ्ते में किया गया. तो कहीं ना कहीं पूरी गवर्नमेंट्स ने बढ़ चढ़ के काम किया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत एक्सीलेंट काम किया. और देखिए, वर्ल्ड में यूके के बाद अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के बाद इंडिया थर्ड कंट्री होगा जो इसे ऑथराइज करेगा. ब्राजील के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ऊपर. तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है नए साल की, कि भारत के अंदर वैक्सीनेशन, और मैं उम्मीद करता हूं अगले 1 हफ्ते में शुरू भी हो जाए. तो बहुत बड़ी खबर है ये. जी धीरज जी, हमारे साथ निश्चल भट्ट भी है जुड़े हुए स्टूडियो. निश्चल भाई, आपने पूछो मागी से વેક્સિન આવવાની હવે ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે, મંજૂરી હવે ત્યાં મળી પણ જશે, ત્યારે શું ટાસ્ક ફોર્સ જે રચના કરવામાં છે, કેવી રીતે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે અને કેવી રીતે લોકોને વેક્સિનેશન માટેની પ્રક્રિયાનું આયોજન કરાયું છે? નવા વર્ષની આ એક ખૂબ સરસ સમાચાર છે કે આપણને સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા અને ઓક્સફોર્ડ અને એસ્ટ્રાઝેનેકાની આ વેક્સિનની ભેટ મળી છે. ભારતના દરેક નાગરિક આ વેક્સિનની ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. તે સમયે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત બંનેની તૈયારીઓ સંપૂર્ણ થઈ ગયેલી છે અને છેલ્લા લગભગ 1.5 થી 2 મહિનાથી આ તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ઇવન આજે પણ સમગ્ર ભારતમાં એનું ડ્રાય રન થવાનું છે. ડ્રાય રન એટલે કે આખી વેક્સિનની પ્રક્રિયા, વેક્સિન આપ્યા સિવાયની જે પ્રક્રિયા છે એને સંપૂર્ણ કરવામાં આવશે. હું આપને થોડીક આંકડાકીય માહિતી આપું તો એ પ્રમાણે આપણા ગુજરાતમાં લગભગ 17,000 વેક્સિનેટર્સ તાલીમ પામીને તૈયાર છે કે જે આ વેક્સિન જ્યારે રોલ આઉટ થશે ત્યારે એને આપી શકશે. અને આપણને સૌને માહિતી છે એ પ્રમાણે પ્રાયોરિટી પ્રમાણે આ વેક્સિન આપવામાં આવશે. એટલે શરૂઆતમાં ફ્રન્ટલાઇન હેલ્થકેર વર્કર્સ, ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ, 50 વર્ષથી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓ અને 50 વર્ષથી નાની ઉંમરના વ્યક્તિઓ જેને કોમોર્બિડિટી છે, આ પ્રાયોરિટી પ્રમાણે આ વેક્સિન આપવામાં આવશે. અને જેમ ડૉક્ટર ધીરજે વાત કરી એમ પૂરી શક્યતા છે કે DCGI તરફથી પણ એની પરમિશન મળશે અને લગભગ એકાદ અઠવાડિયાથી 10 દિવસમાં આપણે ભારતમાં આ વેક્સિનને રોલ આઉટ કરી શકીશું. ચોક્કસ. जी धीरज जी, आपसे पूछना चाहूँगा, भारत ने
पहले भी ड्राई रन किया, आज भी 2 दिन ड्राई रन करने वाला है। क्या कहीं भारत के अलावा कोई कंट्री में ऐसा ड्राई रन किया गया है और कितना पुछता होता है ड्राई रन करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कितना सटीक रहता है? देखिए, इससे पता लगता है सूझबूझ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सूझबूझ बहुत अच्छी है। ड्राई रन करने से आपको आपका स्ट्रक्चर समझ आता है। देखिए, वैक्सीन आपके हाथ में मिल जाए, उससे जब तक एक पर्सन के अंदर इंजेक्ट नहीं होगी कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं एस्ट्राजेनेका की शेल्फ लाइफ तो 6 महीने है, लेकिन फाइजर और मोडेर्ना की तो फाइजर की कुछ घंटे थी, मोडेर्ना की 30 दिन थी। तो यहाँ पे भी यूएस में भी कई जगह हमने ड्राई रन किया टू मेक श्योर कि वैक्सीन वेस्ट ना हो, क्योंकि वैक्सीन इज वेरी वैल्यूएबल और हम लोग उसको जल्दी से एडमिनिस्टर कर सकें। और ड्राई रन से हमें ये पता लगता है कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्या स्टोरेज में कोई डेफिशिएंसीज हैं, क्या हमारा स्टाफ नहीं आ पा रहा, क्या लोगों के अंदर रिएक्शन। देखिए, जानना जरूरी है, वैक्सीन देने के बाद 15 से 30 मिनट हमें रिएक्शन भी चेक करना होता है, क्या उन लोगों के बैठने का इंतजाम है। उसके बाद जो सेकंड शॉट लगेगा उसको फॉलो अप करने के लिए हम एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करते हुए, ताकि रिमाइंडर्स उनको भी मिले और उनके फैमिली मेंबर्स को मिले। और एक और चीज मैं रिकमेंड भी करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पहले भी मैंने बोला है, कई ऐसे वृद्ध लोग हैं जो वैक्सीन सेंटर तक ना आ सकें, उनके लिए होम वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं। तो ड्राई रन के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। और एस्ट्राजेनेका एक बात और देखिए कि भारत के अलावा पूरा विश्व इसको देख रहा है, क्योंकि फाइजर $40 का था 2 शॉट्स, मोडेर्ना $50 का, और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने बढ़ चढ़ के बोला कि जब तक पेंडेमिक दुनिया में है हम इससे $1 भी नहीं कमाएंगे, हम कॉस्ट पे देंगे। तो $6 की टोटल वैक्सीनेशन पे उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट खोल दी है इसके लिए। सारे डेवलपिंग कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, आप देख लीजिए साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यहाँ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ट्रायल भी देखिए साउथ अफ्रीका और ब्राजील के अंदर चल रहा था, और अब ब्राजील की गवर्नमेंट इसको इंडिया के बाद मुझे लग रहा है रोक नहीं पाएगी, वो भी अप्रूव करेगी। और WHO का एक ऑर्गेनाइजेशन है कोवैक्स, जिसने बेड़ा उठाया है $3 बिलियन की वैक्सीनेशन, 3 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए वो पुअर कंट्रीज को सप्लाई करेगा, जो कि यूनाइटेड नेशन उसको फंड करता है, बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन फंड करती है। क्योंकि मैं इंटरनेशनली इसको फॉलो करता हूं, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए। और इसके अलावा एक है अलायंस फॉर वैक्सीनेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी 300 मिलियन डोजेस प्रोक्योर करने के लिए बढ़ चुकी है, और 150 मिलियन कोवैक्स और 3 बिलियन डोजेस 2021 में प्रोक्योर करेगी इस साल के एंड तक। और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन की भी वैक्सीनेशन आने वाली है, अभी आएगी, और कुछ ही महीने के अंदर आपके भारत बायोटेक और जाइडस, जो उनका डाटा दिखता है बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग है। इसके अलावा एक और वैक्सीन है जो ओरल होगी, वैक्सार्ट, जिसकी ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुकी हैं। तो बहुत सारी वैक्सीन मार्केट में आएंगी, लेकिन सबसे जरूरी है गवर्नमेंट्स के लिए कि अपने हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करे। फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो कि डॉक्टर्स, नर्सिंग और जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रांजिट वर्कर्स, टीचर्स, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप वाइज वापस खुल सके, ताकि इंफेक्शन का स्प्रेड ना हो, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना, हमें इसकी चेन ब्रेक करनी पड़ेगी। और एक और पॉइंट एस्ट्राजेनेका का, शायद एक ही ऐसी वैक्सीन है तीनों फ्रंट रीडर्स के अंदर, जिसके अंदर फाइजर और आपकी मोडेर्ना, जिसके अंदर ये डाटा है कि क्या ये ट्रांसमिशन को भी रोकेगा, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर को। और जो प्रिलिमिनरी डाटा है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। तो ये बहुत अच्छी खबर है सबके लिए। जी નિશ્ચલભાઈ, ડોક્ટર ધીરજે જે રીતે કહ્યું કે જે વેક્સિનેશન જે લોકોને વેક્સિન આપવાની છે, જે લોકો વેક્સિનેશન સેન્ટર સુધી નથી પહોંચી રહ્યા, એ લોકોને ઘરે વેક્સિન આપવી જોઈએ તે પ્રકારની વાત કરી। અને અગાઉની ચર્ચામાં ડોક્ટર ધીરજ કોલે એ પણ સજેસ્ટ કર્યું હતું કે જે બીજો ડોઝ છે એ 4 વીકની બદલે 12 વીક કે અથવા એ સમય 4 વીકથી વધારે કરવો જોઈએ, જેથી મેક્સિમમ લોકો સુધી વેક્સિનેશન પહોંચી જાય, વેક્સિન પહોંચી શકે। આ બે એક મહત્વના મુદ્દા સજેસ્ટ કર્યા હતા ડોક્ટર ધીરજ કોલે। આ મુદ્દે આપનું શું કહેવું છે? શું આ સ્ટેપથી આગળ વધી શકાય? બિલકુલ, યુકે આપણે સૌને ખ્યાલ હશે કે 4 અઠવાડિયા પછી યુઝ્યુઅલી આ સેકન્ડ ડોઝ આપવાની રેકમેન્ડેશન હતી, એમાં ફેરફાર કરીને બીજો ડોઝ લગભગ 12 અઠવાડિયા પછી આપવાનું નક્કી કરેલું છે। ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા પણ અને એ લાઇન ઉપર વિચાર કરી જ રહી છે। એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણી પાસે જે નંબર ઓફ ડોઝ અવેલેબલ છે એનો ફર્સ્ટ ડોઝ જેટલા મેક્સિમમ વલ્નરેબલ ગ્રુપ્સ છે એને આપણે આપી શકીએ તો એમાં ઇમ્યુનિટી શરૂ થઈ જાય, અને જ્યારે બીજા ડોઝનો સમય આવે ત્યાં સુધીમાં આપણી પાસે વધારાના ડોઝ ઉત્પન્ન કરવાની સમય પણ આપણે મળી જાય, જેથી એ ડોઝ અવેલેબલ થઈ શકે। બીજું, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત કન્ટિન્યુઅસ
ટ્રેનિંગ ઓફ ટ્રેનર્સ વર્કશોપ્સ અને એ કરી રહી છે, જેને કારણે ફ્રન્ટલાઇન હેલ્થકેર વર્કર્સ જે લોકો વેક્સિન આપવાના છે એ લોકો તૈયાર થઈ રહ્યા છે. ગુજરાતમાં અત્યારે 17,000 વેક્સિનેટર સેન્ટર્સ તૈયાર છે, જેમાં દરેક સેન્ટરમાં લગભગ 5 સભ્યોની કમિટી હશે. દરેક સેન્ટર ઉપર કમ્પ્લીટ કોલ્ડ ચેન મેન્ટેનન્સ, વેક્સિન આપ્યા પછી 15 થી 20 મિનિટ કે 30 મિનિટ સુધી એ વ્યક્તિનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. મોનિટરિંગ કર્યા દરમિયાન એને કોઈ તકલીફ પડે તો એડવર્સ ઇવેન્ટ ફોલોઈંગ ઇમ્યુનાઇઝેશન માટેની કમ્પ્લીટ કિટ રેડી છે અને એના માટેના ટ્રેનિંગ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ચૂકેલા છે. અને એ ઉપરાંત ઘણા બધા EFI સેન્ટર્સ પણ તૈયાર કરવામાં આવેલા છે. એટલે કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈ કારણસર કોઈપણ વેક્સિનની સાઇડ ઇફેક્ટ થાય અથવા તો એડવર્સ ઇવેન્ટ ફોલોઈંગ ઇમ્યુનાઇઝેશન થાય તો એની સામે પણ આપણે ખૂબ સરસ રીતે તૈયાર છીએ. હવે જે હોમ વેક્સિનેશનની આપ વાત કરી રહ્યા છો, એ વેક્સિનેશન માટે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અને ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત ડેફિનેટલી વિચાર કરી રહ્યું છે અને એની રૂપરેખા તૈયાર થશે અને એક્ઝેક્ટ એની માહિતી મળશે એટલે એ આપને જણાવવામાં આવશે. પણ એક સજેશન ડૉક્ટર ધીરજનું ખૂબ સારું છે અને એના ઉપર ચોક્કસ આપણે વિચાર કરીશું. डॉक्टर धीरज जी, जिस तरह से ये कोविशील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके टेम्परेचर में काफ़ी अंतर दिख रहा है अन्य वैक्सीन से. 2 से 8 डिग्री तापमान में भी ये संग्रह हो सकता है, उसको स्टोर किया जा सकता है. एक तरफ विंटर चल रहा है और टेम्परेचर का भी देखा जाए तो अन्य वैक्सीन से टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ेगा. ये भी एक बेनिफिट रहेगा कोविशील्ड के लिए. देखिए, जैसे मैंने सितंबर में भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिकली, खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड के लिए. हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते -70 डिग्री सेंटीग्रेड के के हाई इंटेंसिटी फ्रीजर्स या लिक्विड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, जो फाइजर अपने बॉक्सेस में कर रहा है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. मोडेर्ना भी -20 डिग्री, जो शायद एक्चुअली इंडिया के मेट्रो सिटीज में बहुत मच प्रैक्टिकल और पॉसिबल है. और मुझे लगता है मोडेर्ना भी अप्रोच करेगा EUA के लिए, क्योंकि डिमांड बहुत है. तकरीबन रूम टेम्परेचर पे भी काफी घंटों तक रख सकते हैं, कई दिनों तक एक्चुअली रख सकते हैं, जो न्यू डाटा आ रहा है. इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है. और दूसरी बात है कि ये एक तरीके का वायरल वेक्टर, चिंपांजी का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उसके वायरस वेक्टर को यूज करके बनाया गया है. एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म है जिसको हमने यूज किया, और इस वायरस को हमने पहले भी यूज किया है. तो सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है, एफिकेसी भी बहुत अच्छी है. और सबसे जरूरी बात देखिए, विकासशील देश इतना अफोर्ड नहीं कर सकते. $6 फिर भी वो अफोर्ड कर पाएंगे, और UN और WHO इसमें बहुत मदद कर रहा है. और मैं आपको अगर बताऊं, क्योंकि मैं तो बायोटेक को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, जो एक वैक्सीन है, जब आप बना लेते हैं तो उसकी मास प्रोडक्शन आप जब लाखों से करोड़ों में जाते हैं तो वो कॉस्ट पेनीज में आ जाती है, बहुत चीप पड़ती है. और कहीं ना कहीं मैं तो ये भी आशा करता हूं, जिस हिसाब से मोदी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, कि वो इसकी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्रीज सीरम के अलावा और भी बनाएंगे. क्योंकि एक बार वैक्सीन बन जाए तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कॉपी करना होता है. आपके अहमदाबाद में भी खुली जा सकती है कॉपिंग इंस्टॉलेशन, और उसको आप साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और रेवेन्यू भी आएगा. और उसी प्लेटफॉर्म को आप और वैक्सीन के लिए बाद में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत बड़ी डिमांड है. और भारत तकरीबन 70% वैक्सीन वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, आउट ऑफ ऑल द वैक्सीन. लो कॉस्ट, वेरी गुड क्वालिटी. तो मुझे बहुत बहुत उम्मीदें हैं. ये आपदा 2020 की थी, लेकिन एक बहुत अच्छी अवसर भी है भारत को. बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 2021 to 2030 लीडिंग एरिया है वॉल स्ट्रीट के अंदर, उसमें वर्ल्ड लीडर बनने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने का, और जिनोमिक्स, जिसपे मैंने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसके अंदर हम DNA सीक्वेंसिंग देखते हैं, जीन मैनिपुलेशन देखते हैं, जीन स्लाइसिंग देखते हैं. तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बहुत तेजी से पिछले 8-9 महीने में हमारे सामने चेंज हो चुका है, और भारत के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं. एक शॉर्ट में आंसर चाहूंगा धीरज जी, कि जिस तरह से वैक्सीनेशन के लिए कुछ समाज में विवाद हो रहा है कि हम लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उसके कंटेंट के बारे में जो विवाद चल रहा है, उसके बारे में क्या रिसर्च में आपके सामने आया है कि क्या वो ऐसी चीजें हैं वैक्सीन के कंटेंट में जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती है, ऐसा कुछ आपके रिसर्च में सामने आया?
देखिए, फाइजर, मोडेर्ना और एस्ट्राजेनेका के अंदर कोई एनिमल फैट प्रोटीन नहीं यूज हो रहा। आई डोंट नो ये कहाँ से ये अफवाह उड़ रही है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को व्हाट्सएप पे ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं, इन लोगों को ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कई लोगों की जान जा सकती है। आपका डाटा हमेशा साइंस बैक होना चाहिए, जैसे कि हम आपके शो पे बताते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे कई ऐसे लोग होंगे जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होंगे, वो इनकी बात को सत्य मान के कि इसमें सुअर का कुछ कंटेंट है या कुछ और एनिमल का कंटेंट है, नहीं लेंगे, जिससे उनको तो नुकसान होगा, लेकिन वो ट्रांसमिट कर पाएंगे दूसरे को भी। जब तक हम वर्ल्ड की आबादी के 70% लोगों को या तो वैक्सीन के थ्रू गुजार दें या इन्फेक्शन के थ्रू गुजार दें वर्ल्ड को, क्योंकि ये एक पूरी एक तरीके की फैमिली है। ऐसा नहीं है कि इंडिया बचा है, पाकिस्तान नहीं होगा तो इंडिया बच जाएगा। हमें हर किसी को वैक्सीनेट ग्लोबली करना है, इसलिए WHO काम कर रहा है। और ऐसे मिथ से बिल्कुल बचिए, ऐसे मिथ से बिल्कुल बचिए। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका चैनल अवेयरनेस फैलाने के लिए, और मैं आपका धन्यवाद देता हूं इस काम के लिए। જી જી નિશ્ચલભાઈ આપને પૂછવા માંગીશ, મહત્વનો મુદ્દો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક આપે જે ટીમ તૈયાર કરી છે, આ પ્રકારની જો તકલીફ આવશે તો એના માટેનું શું આયોજન કરાયું છે? કોઈ લોકો વેક્સિનેશન માટે ના પાડશે તો રજીસ્ટ્રેશન માટે બી ના પાડી છે, શોર્ટમાં જવાબ આપશો કે શું તૈયારી આપની એ મુદ્દે? આ બધી જ જે મિથ છે, હું હંમેશા મીડિયાને અને ન્યૂઝ ચેનલને કહેતો હોઉં છું કે કંઈ પણ વસ્તુ સ્પ્રેડ કરતાં પહેલાં આપણે જેના એક્સપર્ટ્સ છે એમની સાથે વાત કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમ ડૉક્ટર ધીરજે જણાવ્યું એમ બિલકુલ કોઈ પણ પ્રકારની આવી પ્રકારની જે માન્યતાઓ છે એનાથી ડરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. કોઈ પણ પ્રકારના એનિમલ પ્રોટીન અથવા તો આપણે જે મોડર્ના કે ફાઇઝર વેક્સિન વિશે mRNA DNA આપણા શરીરમાં જઈને આપણા જીનોમને બદલી કાઢશે એવી કોઈ પણ પ્રકારની જે ખોટી માહિતી, ભ્રમિત કરનારી માહિતી છે એનાથી દૂર રહેવાની ખૂબ જ જરૂરિયાત છે. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ ગઈકાલે જ બપોરે 2 થી 4માં અને સાંજે 5 થી 7માં ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં સ્ટેટ વાઇઝ અને પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીથી બધા જ વ્યક્તિઓને માહિતગાર કરેલા છે. અને છેક નીચે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ સુધી બધાના સુધી આ માહિતી કેવી રીતે પહોંચાડવી અને જે પણ કોઈ મિથ હોય એની સામે કેવી રીતે જવાબ આપવો એના માટેની બધી રૂપરેખા તૈયાર છે. અને ફ્રોમ બિગિનિંગ ટુ એન્ડ બધી જ તૈયારીઓ છે ગવર્મેન્ટની, અને એનું ખૂબ જ સરસ રિઝલ્ટ આપણને મળશે. ચોક્કસથી તૈયારીઓ ગવર્મેન્ટની છે અને તમામ વેક્સિનેશનની તમામ તડારામાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ધીરજજી और निश्चल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમારી સાથે જોડાયા, ચર્ચામાં ભાગ લીધો અને અદ્ભુત માહિતી પણ આપી. અને લોકોને ક્યાંય ડરવાની જરૂર નથી કોઈ પણ પ્રકારની, કારણ કે સરકાર કટિબદ્ધ છે તમામને વેક્સિનેશન માટેની અને વેક્સિન હવે આવી જ રહી છે. ABP અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા.